Good evening, everyone. Welcome to this third episode of Hashtag Startup Saturdays by LinkedIn Local Guwahati. And with this hashtag, we aim to bring forward amazing startups so that we can make people aware of the challenges and teach the budding entrepreneurs what effort it takes to make a startup function well. And this is Mamta Roy, one of the lead members of the event. And today we are having the pleasure to welcome an inspirational youth icon, Mr. Amit Jain, who is on a mission to empower widows, single women, and give them a chance at finding employment and acceptance. So thank you so much, Mr. Amit Jain, for joining us and giving a precious time. Okay, so it would be much inspiring to start with your journey in the organization. Like, how did Mitikaram started, and what was the inspiration behind it? Right. So yeah, firstly, thank you so much, because Guwahati is in, like you guys know, I was in Guwahati for 70 days in the lockdown. And I wouldn't be more happier than to be in Guwahati compared to other cities because, temperature, everything was so perfect that I really didn't felt ki ha kuch bura ho raha hai. So it was pretty good. So thank you for, hosting me and helping me all over. And to start the journey about Mitti Ke Rang, so we started this like 6 years back from Pune in Maharashtra. And I'll just give you a background what Mitti Ke Rang, why we started that. So I'm from a town in Maharashtra wherein I lost my father when I was 3, and my complete graduation was been supported by my uncle, auntie. So they gave us food, accommodation, everything. Because of them, we were able to survive, learn, and do everything whatever we can. Then in the after 10th, I was very bad at studies because being a single parent child, you tend to become some, mischievous and all those things. So I was very bad at studies. My family was in big trouble. Ki kya karega ladka, whether he'll be able to study and all those stuffs. So I did 11, 12 science, and luckily I got good marks. Then I came to Pune to do engineering, but the fees was pretty high. So I just came back to my hometown again. I took admission in BCom. While doing BCom, I studied for MBA for CAT and all, but I scored very badly. Then I thought like life ki to ab lag gayi, kuch hoga nahi. After doing a BCom, I just came to Pune to look for a job because everyone told me ki, if you are a BCom grad, you will not get a good job. So that I had in mind कि अगर 5-6 हजार भी महीने कोई देता है, so it's a good income for us for me to begin with. So I came in 2012, and we were pretty poor at that time. So I just got 1,000 with me, and I don't know where to go, what to eat, and everything. But luckily, after a month, so I used to eat once in a day. Luckily, I had a friend who hosted me here, and after applying to a couple of jobs, Bank of New York hired me. So the interview was pretty intense because I was a BCom grad, and I had sports shoes at that time. So he asked me, "Ki, Amit, why not? You are informal. Why you informal?" I'm like, "So paisa nahi tha juta ke liye." So I just got off my friend. So that's how the journey of Pune began when I came to work with Bank of New York. After 2 years in Pune and being from a rural town, it's always big that you're going to a new city. Everything is new for you, even for a mall, going for cinemas, talking to people in English, because you tend to believe when you're from a small town that you are very small, you are not that knowledgeable compared to people in cities, even though they are not. But that thought is in our mind कि नहीं यार वो लोग It's ना बड़े हैं, तो वो ज्यादा ज्ञान है अपने से, तो वो फिर अपन डर जाते हैं. So that's how the journey began. In 2 years I tried to understand what Pune is all about, and उसके साथ में जॉब भी चल रहा था. फिर मॉम आ गए होम टाउन से पूना. So then on a given day we thought कि इतना टाइम सबने हेल्प किया है, from getting a good job, getting food, everything. So let's help society. So we just started with an initiative of collecting clothes, books and everything. फिर वो initially वो donate किया slums में, NGOs में, और उस तरीके से मिट्टी का रंग चालू हुआ. So this is a background why we started मिट्टी का रंग. Okay, so recently, due to the COVID-19 crisis, you have started a fundraising campaign to reach out to the marginalized sector of the society to provide them a safety net. So please tell us something about the crowdfunding, the fundraising campaign. Right. So, in Mittikaran, what happened, I was working with the Bank of New York for 7 years until 2019. And there came a time that, the women who were working with us, they were making paperbacks and everything. And very frankly, very honestly, we used to work as an NGO until 2019. But later we realized that whenever you hear the word NGO, तो तुम्हारे दिमाग में ना गरीबी चैरिटी कम्स इनटू पिक्चर कि यार गरीब है, इनको हेल्प करना है, इनको दान देना है. एंड वी फेल्ट वेरी बैड कि यार हमने 5 साल वही प्रमोट किया है. So me and my co-founder, Mr. Saket Deshmukh, he is the brain behind this idea ki, let's not talk about NGO. Let's move from an NGO to a social venture wherein the women who are working with us, give them dignity.
because they are working, they're already empowered, they just need direction. So then we moved from an NGO to a social venture, wherein the women make paper bag, cloth bag, and after selling it on Amazon and Shopify, we thought, okay, we can do much better. Then I left the job last year in March 2019, which was a very big decision for me because getting 1,000 with me in 2012 to living a very high paid job. Ghar walon ko I told ki they are kicking me out of the job because my family will never agree to the point that I am leaving the job. But मैं बोला भाई छोड़ते हैं, अभी हो गया बहुत, दिमाग को शॉर्ट हो गया, जॉब नहीं करना है क्योंकि you are working 12 hours a day in Bank of New York, 10 hours with Nifty Kerang, so the pressure was intense. I'm like, let's take a risk for 2 years, we have good connection, अगर नहीं चला तो जॉब कर लेंगे. फिर जॉब छोड़ दिया and then we took full fledged मिट्टी के रंग. और फिर दिवाली में I started with my backpack journey in the month of November after Diwali. और मेरा प्लान था कि I'll do कन्याकुमारी to कश्मीर, K2K and A to B, अरुणाचल to बॉम्बे. पूरा जर्नी स्टार्ट हुआ तो मैं गुवाहाटी आया कुछ अराउंड 3rd मार्च को टू कंप्लीट द बैकपैकिंग इन नॉर्थ ईस्ट. और उस टाइम व्हेन आई वाज इन ईटानगर अरुणाचल में तो लॉकडाउन हो गया. सो देन क्विकली आई केम बैक टू गुवाहाटी कि चलो वहां पे आई हैव अ फ्रेंड हु कैन होस्ट मी. वहां पे आने के बाद में व्हेन आई गॉट माई सेल्फ इनटू अ लॉकडाउन, आई रियलाइज कि यार मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि टू सेटल इन अ प्लेस विच वेरी नॉट नॉर्मल फॉर मी. सो व्हेन इन द आइडिया केम फॉर फंड रेजर, सो मी एंड माई को फाउंडर वी स्पोक कि क्या करें. So we thought, okay, let's keep a target of raising 10 lakh rupees for 1,000 family. Like we will transfer 1,000 INR to each family. And very frankly, we thought कि हमारा जितना network है, अगर 1 lakh rupees भी raise हो गया, तो it's a very big amount for us. But I don't know how it happened. In one day, we raised 1 lakh rupees. And then in 9 days, we raised 10 lakh rupees. And also what really happened, like, we had family who we were supporting. So what we thought, like, let's directly transfer to the beneficiary account all over India. We had a great network of volunteer. And if the volunteer tells us who we believe in, okay, Amit, this family needs help. We have the team, we have the Mila Fund Reserve, we got the amount, we transfer the amount directly to them. So that was the, initial point where we started with idea of 1 lakh. And now right now we raised 16 lakh 50,000 rupees in like 29 days. Yeah. Okay, sir. So lastly, I would ask that what message or advice you have for young entrepreneurs, social entrepreneurs. So what message or advice you have for them? Right. So, Mitti Kerang, when we started from 2014, it's been 6 years. We had to close Mitti Kerang like 3 or 4 times because there was a time where we thought nothing is moving forward. I have to work. My family pressure is coming. We don't know which direction we are going to. But unconsciously, with the support of the co-founder, which we met in 2015, we just kept going. करते 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 आज ऐसा टाइम आ गया कि जॉब भी छोड़ दिया. We are at a very good stage. We work in 12 countries right now. We have a great network all over India. So that one thought and one quote which I kept following all through the journey of 7 years, which was make connections when you don't need the most. Okay. So 7 years का जो connection बनाया, and you won't believe I started the backpack on 8th of November. In 4 months, I traveled to 80 plus cities. And this 80 plus cities, my total expenditure was 17,500 rupees. I met all the people, we partied, we had a lot of events happening. So because of connection in every city, I had a home to go to. I had a friend who took me around. I had a food people were offering me to. And then later on, when we wanted help to raise fund, we have huge network all over the social media platform. So the only message which I would love to even remind myself and people who want to do something, no matter in social entrepreneurship, into their own business, into their own life, just keep going, just keep doing, and अपनी ना गर्दन नीचे करके काम करो 10 साल, जो हमने किया 7 साल तक के, आपको जो चाहिए वो सब हो जाएगा. We also adding to that, काफी media covered us, which made me particularly very कि यार हम तो हवा में उड़ रहे हैं, कि मीडिया कवर कर रही है, हमको लोग जानते हैं, तो that made us so proud कि हम ये भूल गए कि हम कहाँ से आए. So that was another reason for me to leave the job. कि 2012 में 1000 रुपए लेके आया था तो मैं जमीन पे था. I was open to learn new things. Now when I'm earning in lakhs, I have stopped learning. So after leaving job, when I again came back on track कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है, बस मुझे पता नहीं क्या होगा आगे, जॉब छोड़ दिया, तो वापस मैं अपनी औकात पे आ गया कि नहीं भाई, अब अपने को वापस मेहनत करनी है, वापस लोगों से एडवाइस लेना है, जो चीजें सीखी है
उसको अनलर्न करके जो अभी चल रहा है उसको लर्न करो। सो ये सब चीजें एक्यूमुलेट होके अब वापस हम हमारी औकात पे आके गर्दन नीचे करके काम कर रहे हैं और अब आगे देख रहे हैं कि 10 साल बाद क्या करना है। सो या दैट इज व्हाट वी बिलीव इन। Yes, sir. Great. As you said, the network is very essential, and this is all about what LinkedIn Local official group is about. Our LinkedIn Local Guwahati. We believe in connecting to more professionals, so it is helping us in our need. Okay, so you also made us realize that bringing change can happen by turning a thought into action. So now this is the right time. I would like to ask all the attendees if they have any questions. Please raise your hand if you have any question to ask. सर आपको Yes, क्या please go लगता ahead. है सर आपको क्या लगता है ये कोविड-19 का जो भी सिचुएशन गया है इसके बाद मतलब सिचुएशंस कैसा आएगा और उसको हम कैसे अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हैं? वेरी गुड। तो देखो ये सवाल मुझे भी आया कि जब मैं था ईटानगर में कि यार हमें तो अब ना, क्योंकि हमारा प्लान क्या था कि हमने लास्ट दिवाली में 40 दिन में 52,000 कैंडल बेचे, ठीक है। और अब कॉन्फिडेंस आ गया कि अब ये साल भी हम बेचेंगे 10 लाख कैंडल। और कैंडल बेचने के लिए आपको फिजिकली ग्राउंड पे विमेन से बनवाना है, उसको अमेजोन पे सेल करना है, मतलब लॉजिस्टिक्स से बहुत लोग इन्वॉल्व है। और जैसे कोरोना का हुआ 14-15 मार्च से पूरा की पूरा खत्म हो गया कि अब पता नहीं क्या करना है। बट एक जो चीज हमें काफी काम आई ना कि जो नेटवर्क बनाया था 7 ईयर्स से, अब हमने जैसे फंड रेज में मूव हो गए कि हाँ चलो फंड रेज करेंगे, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ऑनबोर्ड करके ऑनलाइन सेल करेंगे जो पूरे इंडिया में बना रहे, तो हम लोग काफी क्विक टर्न आउट कर पाए। और अभी जो एक को जो चीज मैं खुद इंप्लीमेंट कर रहा हूँ इसमें कि आपके पास इतना टाइम है ना कि लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टिकटॉक, स्नैपचैट, इस पे आप 4-4 घंटे डालो दिन के, और आने वाले 8 महीने में ऐसा एक नेटवर्क बिल्ड करो। क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा है कि सब लोग ना सोच रहे कि हम बर्बाद हो गए, हम क्या करेंगे, लेकिन आज के टाइम पे जो नेटवर्क बिल्ड कर पाए ना 8 महीने में, क्योंकि जो मुझे सब लोग ऑनलाइन है 24 घंटा, तो आपके पास में सबसे सही टाइम है कि आप उनका अटेंशन लाओ, भूल जाओ कि वो क्या काम आएंगे, आप सिर्फ कनेक्शन बिल्डअप करते रहो। और जैसे कोरोना ओपन होगा 80% चीजें पूरी अपसाइड डाउन हो जाएगी कि आप जो सोचते थे वो पूरा उल्टा हो जाएगा। और उस टाइम दुनिया में कुछ भी आने दो, भले पूरा दुनिया खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके पास नेटवर्क है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप जो आपका सवाल था कि अभी क्या करना चाहिए, कोरोना अभी कल खत्म हो, 1 साल बाद हो कि 10 साल बाद हो कि हो ही ना, लेकिन आपको जो चीज सही में लाइफ में आगे लेके जाएंगी वो है नेटवर्क, लर्न, अनलर्न। और ये मत भूलो कि आपको मेहनत करना है। अगर आप 20 घंटे काम कर रहे हो ना 10 साल तक, कुछ रिजल्ट नहीं भी आया, लेकिन आपको एक ऐसा रिजल्ट आएगा, जैसे हमारे केस में कि 15 लाख रुपए रेज हो गए। मतलब वो सोच के मेरे को डर लगता है कि यार कैसे हो गया। अगर मैंने 7 साल वो सोचा होता कि हमें ये नेटवर्क कब काम आएगा, मैं क्या करूंगा इनका, तो जो नेटवर्क बनाया वो मैंने बिना एक्सपेक्टेशन के बनाया था, बिना कि कुछ उनसे मुझे चाहिए, मैंने सिर्फ ये बनाया कि उनसे मुझे कुछ सीखना है। और उसके बाद में क्या हुआ, अब जब काम आया तो ऐसा आया कि मतलब अभी ये देख रहे हो कि मतलब गुवाहाटी में 70 दिन था मैं, बट फिर भी काम हो गया। तो बस यही बोलना चाहूंगा। थैंक यू सर। So anyone else? Please raise your hand. Malavika ji is already Yeah. there. Hi, Amit. Hi, Amit. How are you? Malavika this Good, side. how are you? Happy to see I you. can see you. You are at home Same. at last. Yeah, I met Amit in Tezpur on 7th of March. Right, Amit? And that time, I was also not thinking that I would go something to some other direction, and I will now today I will meet Amit again on LinkedIn Local to ask my questions. So the same question. First of all, आपकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी जो आपने कहा है कि हम मीडिया में आ गए और एक आधा न्यूज हो गए, हम अपने आप को भगवान मानने लगे, हम लोगों ने बातें सीखना बंद कर दिए। तो दिस इज व्हाट आई एम बिलीविंग एट दिस मोमेंट कि मीडिया में एक आधा छोटे छोटे न्यूज में आ गए तो हम भगवान नहीं बन गए। तो आपको ये बताओ, आपसे जब मैं मिली थी तब मैं आसाम में नेटवर्क बिल्डिंग में काम कर रही थी। जब मैं तेजपुर में मिली थी आपसे, अब मैं
इंटरनेशनली और नेशनली दोनों नेटवर्क बिल्डिंग में काम कर रही हूँ, क्योंकि हम अपनी जो प्लेटफॉर्म को है ना वर्चुअल रियलिटी ग्लोबल के ले जा रहे हैं। लेकिन वही हमें हमें प्रॉब्लम हो रही है फंड की। अभी मेरी फंड की बहुत कमी है। आई एम जस्ट कभी कभी टेंशन भी होती है, लेकिन वी आर नॉट स्टॉपिंग प्लानिंग। हम अपने आप को स्टॉप नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी है कि आगे हमें कैसे जाना है। आगे फंड रेजिंग का हम लोगों ने लिंक भी किया, क्रिएट किया था। बट आपकी बातें सुन के मुझे थोड़ा थोड़ा राह तो दिख रही है। बट आई वुड लाइक टू मोर एट हाउ वी कैन मेक आवर फंड रेजिंग कैंपेन सक्सेसफुल, because I have seen your campaign successful in very short days. ठीक है, तो अच्छा सवाल है। मैं ना जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ, ताकि आपको फिर जो भी पीसेस लगता है कि आपके लाइफ का रिलेटेबल है वो आप ले सकते हो, क्योंकि वही मैं बता पाऊंगा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। पहला दिन 1 लाख रुपए आ गया, 3 दिन में 3 लाख रुपए आ गए। अब गुवाहाटी में क्या था कि कि मैं हूँ पुणे से, तो यहाँ पे होती है सुबह 7 बजे, रात होती है 7 बजे। वहां पे हो गई 4:30 बजे, तो मैं रात वहां पे सोता था सुबह 7 बजे, उठता था 3 बजे। तो ये मेरा 70 दिन का साइकिल था लाइफ का। तो मैं सुबह गया 8 बजे सोने, एकदम टेंशन में कि यार अमित ना अब 3 लाख रुपए आ गए, अब निडल आगे नहीं बढ़ रहे, क्या करें। तो 1 घंटा सोचने के बाद में आइडिया आया कि यार अपना पब्लिक क्यों नहीं डोनेट कर रही है, जिसको करना तो उसने कर दिया। बहुत मेरे व्हाट्सएप पे 4500 व्हाट्सएप कनेक्शन है, क्यों नहीं डोनेट कर पा रहे। तो मैंने कैलकुलेशन किया कि चलो नंबर गेम खेलते हैं, कि अगर सबने 100 रुपए दिया तो नंबर बढ़ सकता है, वो 100 रुपए किसके लिए बड़ी बात नहीं है। आइडिया आया, आई स्पोक टू द टीम, को फाउंडर टीम एंड ऑल, इंप्लीमेंट करते हैं। तो जिस दिन मोदी जी का आपका वो ताली बजाने वाला इनिशिएटिव था ना, उसी से हमने किया ये। आई थिंक वो दिए वाला था। तो 7 बजे मैंने मैसेज बना के सबको भेजा, 1.5 घंटे में 1.5 लाख रुपए आ गए। तो बाद में क्या रियलाइज हो कि मेरे को काफी कॉल आए, मुझे कॉल आए स्टूडेंट्स के, आई गॉट कॉल फ्रॉम ऑटो ड्राइवर्स, एनजीओ जो खुद एनजीओ के लिए रेस कर रहे हैं। वो बोले अमित, जब तुम्हारा जो पहला मैसेज था ना, उस पर हमको लगा कि यार हमको ना सिर्फ बड़ा अमाउंट डोनेट करना है, अगर हमने छोटा अमाउंट किया तो हम कैसे दिखेंगे। बट द मोमेंट यू मेड 100 rupees a respectable amount, कि it can make a difference, we felt so good. Apart from 100 we did 200। तो इसमें स्टूडेंट, एनजीओ, ऑटो ड्राइवर, नो मैटर व्हाट क्लास आर यू फ्रॉम, दे ऑल डोनेटेड। और वो मैसेज इतना वायरल हो गया कि नेक्स्ट 3 दिन में 3 लाख रुपए आ गए। तो 6 दिन में 6 लाख कैसे हो गए, ठीक है। और अपने पास जो एडवांटेज था मिट्टी करण के पास में, वी हैड नंबर। आप देखोगे अभी अपन ने 15 लाख रुपए रेस किया है, तो टोटल डोनर्स आर 1568, है ना। तो कम से कम वी रीच टू 10 लाख पीपल। उसके बाद में इतने जो मिलाप के, मतलब नॉट ओनली मिलाप के, तो ऑल इफ यू कंबाइन ऑल द फंड रेजर, अराउंड 200-300 CR फंड्स आर गोइंग ऑन राइट नाउ। तो इवन द पीपल डोनेटेड, तो आपके 6 लाख रुपए हो गए। फिर उसके बाद में व्हाट वी थॉट, ओके लेट्स गो इनटू लिंक्डइन। सबको बैठ के पूरे टीम ने 6-6 घंटे डीएम किया, फेसबुक पे डीएम किया 5-6 लोगों को, इंस्टा पे डीएम किया, ट्विटर पे डीएम किया, टिकटॉक पे डीएम किया, स्नैपचैट पे डीएम किया। ये साइकिल चलाया वापस 3 दिन, वापस 3 लाख रुपए आ गए। अब वापस 9 लाख पे हम आके अटक गए। अब क्या, तो आखिरी के 1 लाख एक फ्रेंड बोला चलो मैं डोनेट करता हूँ, वो 10 लाख हो गए। उसके बाद वी फेल्ट सो हैप्पी कि 10 लाख हो गया। बट अगेन वी गॉट कॉल फ्रॉम पीपल कि दे नीड हेल्प। सो नाउ द चैलेंज कि वापस अब कौन डोनेट करेगा ना यार, इतना ऑलरेडी कर दिया है, तो वापस सेम प्रोसीजर। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, एक कोट जो हमने हमेशा याद रखा है दिमाग में, लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। मतलब क्या है इसका, आपको मिट्टी के रंग का या मेरा सेम पोस्ट दिखेगा फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, टिकटॉक पे, शेयर चैट पे भी। पब्लिक ने बहुत बोला यार अमित, इतना तुम इरिटेट करते हो यार, तुम स्पैम करते हो, हर जगह तुम्हारा पोस्ट दिखता है। मतलब भाई 5000 लोगों में से तुम गिनो चुने 50 लोग हैं जो सब जगह पर है। तो मुझे घंटा फर्क पड़ता है कि तुमको कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। मुझे मतलब है कि काम होना चाहिए लोगों को कि हाँ भाई ये हो रहा है चीज। तो 50 लोग को हटाओ। होता क्या है ना कि इवन मेंटली मेरे को लगा कि यार 50 लोग मेरे को बोल रहे हैं, मैं स्टॉप करूं क्या। देन फॉर 2 months भी स्टॉप की नहीं यार, स्पैम हो रहा है। बट लेटर वी रियलाइज कि यार 50 लोग डजंट मैटर, वी वांट 4550 people who are getting our message straight. So that should be your strategy कि you should just be in the public कि हम ये काम कर रहे हैं, तुमको पसंद आए नहीं पसंद आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमने काम किया, ईमानदारी से रीच आउट किया और फंड रेज हो गया। So वैसा। You're on mute, Malvika, you're on mute.
Hello, Amit sir. Hi. So I have a question. I'm Diksha. I have a question. Uh, you say that you saw women working and you feel the need to just give them an identity because you realize that they are already empowered. So my question is, are you thinking to make MKR a brand so that you don't have to sell the products that the women are making in other platforms? Are you thinking to take this forward as a brand so that people just recognize MKR as a brand and come here and say, okay, we can get these things here and we can, because after such successful campaigns and events, what are your plans ahead? राइट तो देखो ब्रांड जो एक वर्ड है ना, मैंने काफी सुना है, बिकॉज जो भी बच्चे IIM से MBA करते हैं या फिर हार्वर्ड स्टैनफोर्ड MIT से करते हैं, तो देखो ज्ञान बांटते कि यार तुम स्टडीज करो, प्लान करो, ये करो, वो करो, हमका करो, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली काम नहीं किया है. आई वॉज टॉकिंग टू अ इंटर्न बिफोर दिस कॉल जो IIM शिलोंग से इंटर्नशिप कर रही है. बोलती सर मैंने ना प्रॉब्लम क्या पता है MBA में, कि हम इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट करते हो MBA करने चल जाते हैं, बट फॉरेन में यू गेट वर्क एक्सपीरियंस एंड देन यू डू MBA. और फिर होता क्या है कि आई एम फ्रॉम अ बीकॉम, वो भी एकदम छोटे कॉलेज से मैं पुणे आया, तो जो भी ज्ञान देगा मैं लूंगा कि भाई वो सही बोल रहा है. तो पब्लिक ने बोला भाई ब्रांड बनाओ, मॉडल बनाओ, प्लानिंग करो, टीम को लो, टी शर्ट बनाओ, कैप बनाओ, सब करो, ब्रांड बनाओ. और मैं 2 साल उसमें बहुत टाइम बर्बाद किया कि यार ये करो वो करो. बाद में समझ में आया कि ये सब हटाओ, तुम सिर्फ काम करो, अपना मैसेज पहुंचाओ कि हम ये कर रहे हैं. अब तुमको पसंद आए नहीं आए, इट्स सेकेंडरी फॉर मी. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, पीरियड. ठीक है. So to answer your question, now we have the women with us who are working. Before getting stuck in Guwahati, COVID, we had a thought कि okay Pune में ही women सामान बनाएंगे, उनको हम बेचेंगे. But after COVID, even I learned the lesson कि नहीं Amit, and after doing a backpack across India, that women are making so amazing product. If you talk about Hampi in Karnataka, Nagarkoil, Kanyakumari, Itanagar, Zero, Guwahati, they just need a platform and a push कि यार हम ये काम कर रहे हैं, पब्लिक तक पहुंचना चाहिए. एंड लकीली मिट्टी करण के पास में नेटवर्क है और पब्लिक ट्रस्ट करता है, और उसको मैं कैसे जस्टिफाई कर रहा हूँ, बिकॉज वी रेज 16 लाख रुपीस एंड नाउ आई कैन जस्टिफाई ओके पीपल ट्रस्ट अस, बिकॉज क्योंकि आपको अगर 1 रुपए को डोनेट कर रहा है ना, विच मीन्स दे ट्रस्ट यू. अगर आप, और एक और टू आंसर मलबिका क्वेश्चन अगेन, व्हाट हैपन विद अस, पीपल आर कि हम ना हमें शेयर करेंगे, हम टैग करेंगे. मतलब भाई तुम कुछ मत करो, तुम ना 2 रुपए डोनेट करो, बाद में जो करना है करो. क्योंकि अगर तुम डोनेट नहीं कर रहे हो तो कैसे तुम बोलोगे डोनेट करो. तुम डोनेट करो, बाद में जो करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, आपका वो हो गया. अब आगे जो प्लान है MKR का, अब होगा क्या, जितने वुमेन जो चाय का ठेला था, जिसकी सब्जी मंडी थी, जो भी था, उनका ना, उनको पैसा चाहिए वापस गाड़ी खरीदने के लिए, सब्जी लेने के लिए, लाइट बिल भरने के लिए, दुकान का रेंट भरने के लिए. तो अपना प्लान क्या है कि अपन 1 करोड़ से 2 करोड़ रेस करेंगे. अब देखो कॉन्फिडेंस कैसा बढ़ गया हमारा. हम पहले 1 लाख रुपए विद थिंक हमारी औकात नहीं है, और आज हम 1 CR की बात कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमने ये हो गया, अब 18 लाख रुपए हो गए, 16 लाख हो गए, तो नाउ वी कैन थिंक बिगर. तो 1 CR रेस करेंगे ये साल में दिसंबर तक, एंड विल बी हेल्पिंग मोर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टू गिव देम अ लोन ऑफ 5K to 10K, अगेन विद रेफरेंस ऑफ पीपल. बिकॉज क्या है ना कि NABARD है आपका, ग्रामीण बैंक है, रंगदे, काफी सारे है, बट उनका रीच नहीं है जिनको सही में नीड चाहिए. इवन गवर्नमेंट से रीच नहीं है. And we have people all over India, from Arunachal to Dharavi to Kanyakumari to Leh Ladakh. हमने चारों तरफ काम किया है. तो वो women को वापस लोन देके, वो जो बैक ट्रैक पे आएंगे, उनसे हम पैसा वापस लेंगे, ताकि उनको भी फील आए कि हमने चैरिटी नहीं किया है, हमको वापस देना है. तो एक ये रहेगा एक्टिविटी. दूसरा, अगर आप कुछ सामान बना रहे हो, वी ऑलरेडी हैव Amazon का पूरा शॉप है अपने पास में, Shopify के ऊपर है, और जो मेरे को फाउंडर साकेत, ही इज अ टेकी, तो वो पूरा हैंडल करते बैठ के पुणे में. तो जो भी उनको सामान बेचना है वो उस पे बेचेंगे. वी हैव अराउंड 50+ इंटर्न्स राइट नाउ, जो और आ रहे भी टीम में, वो पूरा मार्केटिंग करेंगे. तो इस तरीके से दोनों चीज चलती रहेगी. फंड रेजर चलेगा, और हम अपने अपने घर बैठ के जितने लोग की हेल्प हो पाएगी उतना करेंगे, विदाउट एनी फिजिकल अपीयरेंस. I have a question, sir. Mm-hmm. Yeah, good evening, sir. Yeah, as suppose someone has a startup and his startup is not doing so well, like it means it वो होना चाहिए था जितना वो एक्सपेक्ट किया था, लेकिन वो उस स्टार्टअप इतना अच्छा नहीं कर रहा है, तो वो सोचता है कि कुछ ऑल्टरनेटिव एक जॉब्स एंड ऑल अप्लाई करेगा, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है, जॉब्स भी नहीं मिल रहा है, स्टार्टअप भी नहीं हो रहा है, मतलब वो डिप्रेशन में चला गया. तो आई वांट टू आस्क दैट हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन
of a person going through that situation. राइट पता है मतलब आई यूज्ड टू थिंक ये ना मैं आंसर कर सकता हूँ ये सब सवाल के जब लोग आते हैं कि यार हमें क्या लाइफ में करना चाहिए कैसा होना चाहिए बट व्हाट आई रियलाइज यार सबके लाइफ के ना बैकग्राउंड अलग अलग है अभी अगर मुझे कोई पूछे लाइक नाउ पीपल टेल मी कि अमित नाउ यू आर सक्सेसफुल राइट बट 7 years 12 घंटे बैंक ऑफ न्यूयॉर्क 10 घंटे मिट्टी के रंग 7 साल मैंने सिर्फ ये किया है और कुछ भी नहीं किया उसके बाद में बैक पैकिंग चालू कितने बड़े टाइम पे तो जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हो वो अपने बारे में हो सकता है आपके फ्रेंड के बारे में हो सकता है तो उनका बैकग्राउंड क्या है अगर उनने 6 महीने काम किया वो बोल रहा हम सक्सेसफुल नहीं है 1 साल किया है सक्सेसफुल नहीं है तो सबका कंटेक्स्ट अलग अलग होता है बट अगर बेस लाइन अगर आप पूछोगे कोई भी स्टार्टअप का सोशल हो मेडिकल हो आप पढ़ाई कर रहे हो जॉब कर रहे हो बिजनेस कर रहे हो कुछ करना है लाइफ में आप ना सिर्फ काम करो 5 से 10 साल काम करो चीजें बराबर होगी अब बिफोर 5 years सोच नहीं सकते हमारा स्टार्टअप चल ही नहीं रहा है अब इतने लोग मेरे को मिलते हैं मैं मतलब जब बात करता हूँ अमित ना यार आई डोंट लाइक फेसबुक यार आई एम जस्ट ऑन इंस्टा बिकॉज दैट्स द फ्यूचर मतलब भाई घंटा होगा तेरा कुछ पीपल फेसबुक पे है टिकटॉक पे आओ टिकटॉक में बिलीव नहीं करोगे जितना मैं एक्टिव हूँ ना अभी मैं 2 घंटे डालता हूँ टिकटॉक पे लोग बोलते वो प्लेटफॉर्म कुछ काम करनी बट आप उस पर जाओ आप जब वो देखोगे ना वीडियो जो जिस तरीके से बनाते हैं वो आप बना के देखो वी कमेंट किया यार क्या पागल सा वीडियो बनाया बट इट टेक गट्स टू मेक दोस वीडियोस तो यू नो यू आर नॉट आप बोलते हम टिकटॉक पे नहीं है हम इस पे नहीं है हम उस पे नहीं हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है आपको सब जगह रहना है आपको नेटवर्क करना है ग्रो करना है एज ए स्टार्टअप आपको सब चीजें करनी है आपको लोगों को हैंडल करना है घर वालों हैंडल करना है घर वाले 5 साल मेरे से बात नहीं करते थे क्या हमें तुम्हारी सुनता नहीं है सब बोले यार तू क्या मिट्टी के रंग कर रहा है क्या चैरिटी कर रहा है कुछ नहीं होने वाला लाइफ में 7 साल तक सब बोले तू क्या नेटवर्क कर रहा है कुछ काम नहीं आता बोले नेटवर्क और अब कोई कुछ नहीं बोलता है तो अगर आप में वो जज्बा है कि आप फैमिली से बात नहीं कर रहे हो दोस्त आपसे बात नहीं कर रहे आप 20 घंटे काम कर सकते हो 7 साल तो नथिंग इज इम्पॉसिबल तो फिर डिप्रेशन अगर कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको हो नहीं हो जो भी है So Amit, I have a question for you as well. We have 10 minutes left, but my question is like, how do you plan to, and how do you already do the coordination with other organizations? Like, how do you work with other organizations? कैसे काम होता है उस पे? राइट तो अभी देखो 5 साल क्या हुआ ना अगेन कमिंग बैक टू माय बैकग्राउंड की 5 साल ना हमने सिर्फ पुणे में काम किया और बाकी जितने भी एनजीओस थे उनके साथ में सिर्फ कनेक्शन बनाया एंड आई वाज लर्निंग व्हाट दे आर डूइंग उनके फाउंडर्स आई यूज्ड टू टॉक रेगुलरली आई अटेंडेड ऑल द मतलब जैसे जागृति यात्रा है आपको अगर पता होगा तो जागृति यात्रा एक 15 दिन की जर्नी होती है जिसमें 500 एंटरप्रेन्योर्स या एनजीओ पीपल या फिर कंपनी के लोग साथ में आते हैं ट्रेन में 15 दिन वो पूरा इंडिया घूमते हैं एक अलग ही एक्सपीरियंस है तो मैंने काफी ऐसे यात्राज अटेंड किए काफी मीटिंग्स अटेंड किए सैटरडे संडे में सिर्फ मीटिंग करता था पुणे में जितने इवेंट हो रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता ये टेकी इवेंट है कि नॉन टेकी की क्या है आई जस्ट यूज्ड टू गो तो वो पास में इतना नेटवर्क बन गया कि आज अभी जब अनाउंस किया कि यार हम ना 10 लाख रुपए रेस किए 500 एनजीओ जो है हमको कनेक्ट करो हम तुमको डोनेशन देंगे तो सबने मैसेज किया और ऑलरेडी आई नो द बैकग्राउंड बिकॉज कोई भी अगर क्योंकि देखो मैं बिलीव करता हूँ यार वेरी फ्रेंकली अगर तुम काम कर रहे हो ना तो दुनिया इधर की उधर है तुमको सब लोग हेल्प करेंगे लेकिन अगर तुम अपने आप को एड़ा बना रहे हो कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ बट काम नहीं कर रहे हो लोग समझ जाते हैं कि यार ये ना बना रहे हैं काम नहीं कर रहा है सिर्फ दिखा रहा है मैं काम कर रहा हूँ कोई भी पागल नहीं आज की तारीख में आप कितना भी दिखाओ सोशल मीडिया पे ना आप जब मुंह खोलते हो कुछ बोलने के लिए तो समझता है कि आप कितने पानी में तो टू आंसर योर क्वेश्चन वी हैड अ ग्रेट नेटवर्क ऑफ ऑल द एनजीओस ऑल द सोशल एंटरप्रेन्योर्स एंड देन वी नो कि कौन सही में काम कर रहा है and without any doubt we started supporting them and then how the network started growing. Okay, thank you Amit. So anyone else? Okay, so and also I would like to request everyone here, so please contribute to the fundraising campaign of Mitti Ka Rang and support the daily wage workers because it is the time we have to come up with service of humanity. And if no one has any question, I'd like to conclude by thanking Mr. Yes, sir. Yes, so abhi I just check we have one of the intern Razia in the conference. So because वो है तो एक मैं बता सकता हूँ कि क्या background रहा. तो अभी what we did again helping for the fundraiser for all the people. अभी जैसे 15 लाख के ऊपर वापस we got stuck कि अब क्या करें. तो वापस आइडिया आया कि यार कुछ करते हैं.
तो मैं ना सुपर 30 देख रहा था गुवाहाटी में, क्योंकि थोड़ा मतलब मोटिवेशन देता लाइफ में. सो आइडिया आया कि लेट्स व्हाई नॉट, अगर हम जैसे 14 लाख हो गए तो 6 लाख बाकी है, तो लेट्स मेक अ टीम ऑफ सुपर 60. अगर एक एक बंदा बंदी अगर 10,000 रेस किया उनके नेटवर्क में, 3 ऑप्शन है. आप 100 लोग को बोलो 100 रुपीज दो, आप 20 लोग को बोलो 500 रुपए दो, या आप 10 लोग को बोलो 1000 रुपए दो, आप कर सकते हो. तो अभी 10 लोग का टीम बना है सुपर 60 में, जिनने हाँ बोला, उनने एक हफ्ते में 93,000 रुपीज रेस किया. ठीक है. और जो एक रिजा का एग्जांपल दे रहा हूं मैं चेन्नई से, शी जस्ट जॉइंड अ वीक बैक. वो बोली यार सर ना, और अपन ने जो कंडीशन डाली कि अगर तुमको टीम में ऐड होना है तो अगर तुम रेस नहीं कर पाए ना, तुमको अपने जेब से भरना है. तो ये सुन के तो 50% ने बैकआउट कर लिया. पर जिसने हाँ बोला, तो मेरे को रात में अच्छी नींद आई कि ये लोग करके देंगे, क्योंकि इनने हाँ बोला है. तो कपल ऑफ इंटर्न इंक्लूडिंग रजिया वाज वेरी हेजिटेंट कि यार कैसे होगा, बट उन लोग ने 3 दिन में 10 के रेस कर लिया. एंड उन लोग का कॉन्फिडेंस हो गया डबल कि यार लोग बिलीव करते हैं हम पे. और जो इंटर्न्स को हमने बोला कि तुमको 10 के करना है, एक ने 15, एक ने 16, एक ने 17,000 रुपए रेस किया. उनका जो कॉन्फिडेंस है ना कि लोग बिलीव करते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, वो एक नेक्स्ट लेवल पे. तो वो एक, अगर आपको भी जुड़ना है विद सुपर 60 और लाइफ में नॉट विद मिट्टी के रंग, आप लोग सब ने एक बार फंड रेजिंग करना चाहिए. तो उससे ना अपनी औकात मालूम पड़ती है कि अपन कितने पानी में है. और उससे ना रिजेक्शन की हैबिट होती है कि जब लोग मना करते हैं मुंह पे, कैसा लगता है. और नाउ वी बिकम बेशरम, कि फर्क ही नहीं पड़ता है. सो यू नो दैट इज सॉर्टेड. सो या, दैट वाज द लास्ट पॉइंट आई वांटेड टू एड इट बिफोर द फंड. So great, sir, for such great initiative. So lastly, I would like to thank you again for joining us, for giving your precious time. And thanks to whole team of Mittigaram for doing such great jobs who are out there to make the world a better place. And thanks to all the attendees for joining us today. And yes, do join us every Saturday on LinkedIn Local Guwahati Hashtag Startup Saturdays. And keep an eye on the Lily Guwahati social media handles. And yes, so here I conclude. Yeah, thanks, Sir, Mamta. I will take over from here. Amit, we have a question left from Diana Rajvangshi, Himadri Rajvangshi, and her question is: do you have any plan to scale up Young India? यार मैं खुद एक यंग हूँ, तो बस वही कि काम करते रहो, तुम अपने आप स्किल हो जाओगे. तो Yeah, that's true. Anyway, she wanted to ask that question, but due to her mic, she couldn't ask it. So that's why I had to ask this question. So thank you so much for Sayed your sir, time. Sayed sir, I will like to interrupt if you don't mind. I would like to ask Amit sir, how are you feeling that you achieved it? You overachieved your target and still the amounts are coming in. How are you feeling right now? I just want to know that. मजा आ रहा है. That's so if obvious. time That's is very left, good. yeah. So if time is left, I want to ask one question. Okay. So Mittigaram is not in India; it is spreading to all the parts of the world. So how did it reach in such a huge geographical region? How do you started that? राइट. तो देखिए क्या हुआ कि इन 2017 आई गॉट selected as a delegate from India for Commonwealth Youth Summit, wherein we met people from 52 countries. I happened to meet Prince Charles for 12 seconds. एक फोटो भी आया, काफी अच्छा वायरल हुआ. मजा आया कि उन्होंने उनसे मिलने का मौका मिला. और उनको जब बताया कि हम वीडियो के लिए काम कर रहे हैं, तो वो बोले हमारे कंट्री में काफी लोग हैं जो वीडियो है बट कोई काम नहीं कर रहा है. And then they got connected to us. They saw what work we are doing, and later they became a volunteer, and then we started in 12 countries. Because thank you, sir. I think ये continue हो गया. हाँ मतलब time. So yeah, you know, that is how we just kept going. And also last thing, in the month of June, we are doing, so what we do is in the month of May, we did 31 speakers, 31 days on Instagram Live who are doing things from different country. We had from London, from LSE, we had from Palestine, all those countries. In the month of June, we are doing 30 days, 30 speakers, 30 countries, 6 continents. And all have been done, all are selected, and the posters will release by tomorrow. Okay, so sir, shall we conclude here? Sir, Syed Mohsin sir? Yeah? Yes, please. Okay, thanks to all for joining us. And thanks to again thank you Mr. Amit Jain sir for joining us, for giving your precious time.
So here I conclude. See you next Saturday. Till then, stay safe. Take care. Thank you. Bye bye.